Hello and welcome to Biologic. So today we are going to do a short revision of the topic excretion. Body get rid of waste generated inside it by some special organs. First, gaseous waste from photosynthesis and respiration, that is gaseous waste जो भी बनता है photosynthesis से यानी कि oxygen and respiration से यानी कि CO2. Second, nitrogenous waste from metabolic activities यानी कि एक बॉडी लिविंग रहने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करता है उनमें भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको भी निकालना रहता है. एक्सक्रीशन, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल और टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक नाइट्रोजनस मटेरियल्स फ्रॉम बॉडी. ये हो गया एक्सक्रीशन का डेफिनेशन. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सक्रीशन. Accumulation of toxic wastes in body harms the organism, therefore it is necessary to remove this waste continuously. Many unicellular organisms like amoeba and yeast do this by simple diffusion from body surface in the surrounding water. Next, complex multicellular organisms use specialized organ to do this. Next, excretion in plants. Plants also produced many waste products during life processes, but very slowly and in very small amounts, but has no special organs to do so. First, CO2. CO2 as a waste product is generated during respiration. Excreted only during night because in daytime it is used for photosynthesis. Second, water as a waste product is generated during respiration. It is excreted in the form of water vapor all the time by the process of transpiration, that is by evaporation. Third, oxygen is produced as a waste product during photosynthesis because sunlight is present. Excreted only during day because photosynthesis occurs only during day because of presence of sunlight. Next important point, gaseous wastes like CO2, H2O and oxygen are removed by stomata and lenticels. We have studied earlier what are stomata and what are lenticels. Stomata are present in soft parts, that is leaves and soft stems of herbaceous plants, and lenticels are present on the hard woody surface of the large plants या फिर large trees. Plants also store some waste products in parts like leaves, bark and fruits and get rid of by them by shedding of leaves, that is which are dead, peeling of bark and felling of fruits that are ripe. प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं. वो सोचते हैं हम तो बहुत स्लोली अपना वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसको निकालने से अच्छा एक जगह स्टोर कर लेते हैं फिर एक साथ निकाल लेंगे. तो इसीलिए जो डेड लीव्स होती है उनमें वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर लेते हैं ताकि जब भी उनको डेड लीव्स को गिराना हो तो वेस्ट प्रोडक्ट अपने आप गिर जाए. पीलिंग ऑफ बार्क, बार्क मतलब जो भी वुडी ट्रीज होती है उनके स्टेम्स में तुम लोग देखे होंगे बार्क पील हो जाता है तो उसमें भी वो लोग वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर देते हैं. और वैसे ही फ्रूट्स में, क्योंकि वो पता है कि अगर फ्रूट्स राइप होगा या फिर पकेगा तो वो गिरेगा ही. नेक्स्ट, मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स. सेल्यूलर वैक्यूल्स सेल चैप्टर में पढ़ा था हमने. प्लांट्स में सेल्यूलर वैक्यूल्स बहुत बड़े साइज के होते हैं और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. Other waste products are stored in as resins and gums. Resins and gums in old xylem, sometimes secreted from stems and branches. रेजिन्स और गम्स जो होते हैं वो चिपचिपे टाइप के होते हैं. वो ओल्ड जाइलम में स्टोर किया जाता है. जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर. ठीक है. ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट इनटू सॉइल अराउंड देम. ये सॉइल में कौन करेगा? रूट. रूट में जो भी रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट वो कहाँ वो एक्सक्रीट करेगा? सॉइल सराउंडिंग इट. नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. ऑल द टाइम आवर बॉडी मेक्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेजरली CO2 and urea. CO2 is excreted by lungs and urea is excreted by kidney. Okay, lungs excrete CO2 and kidney excrete urea या फिर uric acid. तो lungs excrete CO2 and kidney excrete urea and uric acid. Liver converts more harmful nitrogenous waste into less harmful urea. ये more harmful जो होता है ये क्या होता है? more harmful वाला क्या होता है? अमोनिया होता है. ये अमोनिया को ये किस में चेंज कर देता है? less harmful यूरिया में. किडनीज आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विच एक्सक्रीट यूरिया. तो जो बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, उसको यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? लिवर. लेकिन यूरिया को कौन एक्सक्रीट करता है बॉडी से? किडनी. नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम. अ पेयर ऑफ किडनी दैट इज 2, a pair of ureters that is 2 in number, and a urinary bladder 1 in number, and a urethra which is also 1 in number.
एक एक करके देखेंगे. किडनी लोकेटेड इन एब्डोमिनल रीजन, वन ऑन बोथ साइड्स ऑफ बैकबोन. मतलब थोड़ा पीछे साइड होता है, बैक साइड होता है, और बहुत थोड़े नीचे साइड भी होता है. नेक्स्ट, बीन शेप्ड ऑर्गन्स 2 इन नंबर. मतलब किडनी जो है वो बीन शेप्ड होता है. इट फिल्टर्स ब्लड. किडनी क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाता है. नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेफ्रॉन is the filtration unit of kidney. This can be a direct question. Next, ureters carries urine from kidney to urinary bladder. It is tube like and 2 in number. Next, urinary bladder. Urinary bladder stores urine for some time and bag like structure in lower abdomen. That is, urinary bladder क्या करता है? Stores urine for some time, और ये bag like structure होता है. Next, urethra, a tube to pass out stored urine from bladder out of the body. मतलब यूरिन को हमारे बॉडी से एक्सपेल करने का काम कौन करता है? यूरेथ्रा. अब नेक्स्ट देखते हैं यूरिन का फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है? किडनी में. किडनी के अंदर भी कौन करता है? नेफ्रॉन करता है. ठीक है, तो अब देखेंगे नेफ्रॉन क्या क्या चीज़ से बना होता है और फिर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है हमारी किडनी के अंदर. तो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स है वो है ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल एंड ट्यूब्यूलर पार्ट. ग्लोमेरुलस सबसे फर्स्ट पार्ट है. देखते हैं वो क्या. इट इज़ अ क्लस्टर और टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज. मतलब ब्लड कैपिलरीज जो है वो एक साथ गुत्थम गुत्था हो जाता है या फिर क्लस्टर बना लेता है, वो होता है ग्लोमेरुलस. फिल्टर्स ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट. मतलब जो भी ब्लड उसके अंदर जा रहा है उसको वो फिल्टर करने का काम करता है. Some materials like glucose, amino acids, salts, urea, water etc. pass to Bowman's capsule and then enter tubule of nephron. मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, वहाँ से फिल्टर होके ब्लड पास हो जाएगा, लेकिन जो फिल्ट्रेट बचेगा वो कहाँ जाएगा? बोमेंस कैप्सूल में. और फिर बोमेंस कैप्सूल से आगे कहाँ जाएगा वो फिल्ट्रेट? ट्यूब्यूलर पार्ट में. नेक्स्ट बोमेंस कैप्सूल देखते हैं. इट इज़ अ कप शेप्ड बैग. इट इज़ अ कप शेप्ड बैग सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस टू कलेक्ट द फिल्ट्रेट. ये तो हम लोगों ने देख लिया. नेक्स्ट, ट्यूबुलर पार्ट. इट इज कॉइल्ड ट्यूब आफ्टर बोमेंस कैप्सूल. मतलब ट्यूबुलर पार्ट जो होता है वो कॉइल्ड होता है आफ्टर बोमेंस कैप्सूल. सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मोस्ट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड. सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? ट्यूबुलर पार्ट में, एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब. Next, amount of water reabsorbed depends on how much water or how much excess water is present in the body and how much waste is to be excreted. ओके, अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तो हमारे जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन वाटर का कम होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है, इसीलिए. अल्टीमेटली यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस पार्ट. मतलब यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है? ट्यूब्यूलर पार्ट में. ओके, ये था हमारा नेफ्रॉन का पार्ट. अब आगे देखेंगे कि यूरिन कहाँ कहाँ पास होता है. पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 आर द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. अब आगे देखते हैं यूरिन कहाँ पास हो रहा है. कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल्स फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन्स. कौन सा ट्यूब्यूल है? ये ट्यूब्यूलर पार्ट वाला ट्यूब्यूल. फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट कैरिंग यूरिन. ओके, कलेक्टिंग डक्ट ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरेटर्स. फ्रॉम किडनी टू यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट्स यूरिन. Next, ureters, which are 2 in number. Ureters collects urine from both the kidneys and transport it to urinary bladder. Urinary bladder. Okay. Next, urinary bladder. It receives urine from kidney through ureters and stores it for some time. Okay, ये तो हम लोगों ने देख लिया था पहले. As it is muscular, it is under nervous control. Therefore, somehow we can control its function till some extent. मतलब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये मस्क्यूलर होता है, इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है. इसीलिए हम लोग थोड़ा अपना यूरिन का पास आउट करने वाला प्रोसेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं. एज ब्लैडर एक्सपैंड्स बाय द प्रेशर ऑफ यूरिन इन इट लीड्स टू अर्ज टू पास इट आउट. मतलब जैसे ही इसके अंदर यूरिन भरता है तो ये इसके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है वॉल्स में, जिससे कि हमको लगता है कि हमको अभी वॉशरूम जाना चाहिए और यूरिन पास करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, यूरेथ्रा. यूरिन पासेस आउट थ्रू दिस व्हेन द ब्लैडर इज फुल. ओके, ये भी डिस्कस हो गया था. अब नेक्स्ट हम लोग एक डायग्राम देखेंगे, फिर इसका रिविजन खत्म. ये देखो, ये रहा डायग्राम. इसमें देखो ये ऑरेंज वाले क्या है? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी.
जो आर्टरी और वेन है वो हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए किडनी के अंदर भी आर्टरी घुसती है, वेन निकलती है। तो ये जो दिख रहा है ये रीनल आर्टरी यानी कि किडनी की आर्टरी का एक छोटा सा ट्यूब है या फिर कैपिलरी है। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ये ऐसे जा रहा है, इसमें ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, ऐसे, इसमें ब्लड का फ्लो ऐसे हो रहा है, ये यहाँ आता है और यहाँ पूरा एक ठो टफ ब्लड कैपिलरीज बन जाता है यानी कि ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बन गया। उसके बाद ब्लड तो इसके अंदर फ्लो हो ही रहा है, वो ब्लड ऐसे करके आगे चले जाता है। अब ये क्या है, ये डार्क ब्राउन कलर का जो है ये है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल क्या करता है, जो ब्लड यहाँ से फिल्टर हुआ है उसका फिल्ट्रेट को ही कैप्चर करता है, सारा फिल्ट्रेट इसके अंदर, ठीक है, सारा फिल्ट्रेट इसके अंदर। अब ये फिल्ट्रेट जो है यहाँ पे तो कलेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ से आगे फ्लो होने लग जाता है। फिर जो फ्लो होता है ये है ट्यूबुलर पार्ट जो कि कॉइल्ड होता है। ये कॉइल्ड पार्ट है, यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है, ऐसे यहाँ पे फिल्ट्रेट आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और धीरे धीरे यूरिन बन जाता है। और ये जो कैपिलरी था, ये जो आर्टरी का ब्रांच था, ये यहाँ पे बढ़ता है और इसका क्या काम होता है कि जो भी रीएब्जॉर्प्शन करना है वो ये करेगा, मतलब जो भी एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज जो भी प्रेजेंट है इस फिल्ट्रेट में, उसको कौन रीएब्जॉर्ब करेगा, ये ऑरेंज वाली जो कैपिलरी दिख रही है या फिर आर्टरी दिख रही है वो करेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जो यूजफुल आइटम है वो भी इसमें चले जाता है और उसको रीएब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। तो ये येलो वाला में यूरिन ऐसा आगे बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है और इसमें ऑरेंज वाले में भी ब्लड ऐसे यहाँ पे इस तरीके से फ्लो करते रहता है। अब यूरिन जो है ऐसे आता है, इसका देखो डायरेक्शन क्या है, ऐसे फ्लो हो रहा है ये, उसके बाद फिर ये ऐसे ऊपर फ्लो होता है। फिर ये पार्ट भी थोड़ा सा कॉइल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं था इसलिए इसको मैंने स्ट्रेट बना दिया। ये पार्ट भी कॉइल्ड होता है, यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन होता है कुछ चीज़ों का। फिर यूरिन ऐसे जाता है और फिर इसमें चले जाता है। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है बहुत सारे नेफ्रॉन्स के अंदर से ये ऐसे वाले ट्यूब्स से यूरिन कलेक्ट करता है और फिर इसको ले जाके किडनी के बड़े वाले एक ठो पार्ट होता है पेल्विस, वहाँ पे डिपॉजिट, मतलब वहाँ पे छोड़ देता है, फिर वहाँ से यूरिटर्स लेके जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये जो कैपिलरीज दिख रही है इनका क्या काम है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन करना। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, इन सब का काम क्या है, ये ब्लू वाले और ये ऑरेंज वाले का काम है जो भी एक्स्ट्रा वाटर है यूरिन में जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है उस एक्स्ट्रा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि ज़्यादा वाटर अगर एक्सक्रीट हो जाएगा तो हमको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम होता है किसका, इन कैपिलरीज का। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कहाँ होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इस पार्ट में, ट्यूब्यूलर पार्ट में, ठीक है। ये तो था यहाँ से जो आर्टरी का ब्रांच आया था वो। अब ये क्या है, ये जो रीनल वेन होगा उसका एक छोटा सा पार्ट है। वेन भी तो निकलता है हर एक ऑर्गन से, तो ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन है, मतलब ये वेन बन के निकलता है, घुसता आर्टरी बन के, निकलता वेन बन के। ओके, तो लेबलिंग देख लेते हैं। ये है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये है ग्लोमेरुलस, ये है बोमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट ये यहाँ पे आके क्या बन जाता है, ये कैपिलरीज है बीच में जो भी है। ये क्या है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज हाईली कॉइल्ड। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ये सीधा वाला। दिस इज ब्रांच ऑफ रीनल वेन एंड दिस इज कैपिलरीज। दिस इज ट्यूबुलर पार्ट वेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन अकर्स, इसलिए यहाँ पे लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ओके, तो ये हमारा हो गया एक्सक्रीशन का भी रिविजन हो गया।